Hello dear TYBSC, welcome to the another video lecture of your immunology second. So finally we are at the last point of your last chapter of syllabus, that is the hybridoma technology and monoclonal antibodies. Okay, we are at the last point, which is very simple point. Okay, it is all about the applications of the monoclonal antibodies. Okay, in the last lecture we have seen what are monoclonal antibodies and how they are being prepared inside the laboratory. Okay, we have learned about these things. Now in this lecture we are going to see how these monoclonal antibodies are being employed for the different fields or the different purposes. Okay, it may be the diagnosis, it may be the any kind of a treatment, or even any kind of purification or detection, anything. Okay, we are going to see how these monoclonal antibodies which we prepare in the lab, okay, how we can use it in the different fields or different purposes. Now we have learned that monoclonal antibodies are being synthesized in the lab using the technology what we called as the hybridoma technology. Okay, we have already learned about these things. If you remember, we have seen its history, we have seen what are monoclonal antibodies, what is the procedure to prepare the monoclonal antibodies, how the hat medium has some contents in it that allows only the specific cells to grow, then what is hybridoma technology, and how to prepare those monoclonal antibodies in the large scale. Okay, we have seen about these processes. Now here we will see how the monoclonal antibodies आर बिन एम्प्लॉयड. ओके, जिसके बारे में हमने स्टडी किया कि कैसे उसको सिंथेसाइज किया जाता है, कैसे उसको प्रिपेयर किया जाता है लैब में. अब उनका यूज़ क्या है, क्यों हम ये सब जो झंझट है वो करते हैं, क्यों साइंटिस्ट लोगों ने ये टेक्नोलॉजी इन्वेंट की है. क्योंकि ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती है, ठीक है, इनका बहुत बड़ा रोल होता है इन द डिफरेंट पर्पजेस. ओके, अब वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, यही हम इस लेक्चर में देखेंगे. सो द पॉइंट इज एप्लीकेशंस ऑफ monoclonal antibody, which is going to be the last point, okay, of your syllabus also. So these monoclonal antibodies, they have the wide range of application in the different things. Now the first application here given is the diagnostic application. If you know the meaning of diagnostic, so it clearly means the detection. Okay, we detect something using the monoclonal antibodies. Okay, now when we say the word diagnosis, it is particularly related with the diseases. Okay, कि हम किसी डिसीज़ का डायग्नोसिस करना है, डिटेक्शन करना है, तो हम उसके लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं. अब वो कैसे किया जाता है, तो फर्स्ट एप्लीकेशन इज़ दी monoclonal antibodies are being used in the biochemical analysis. Okay, अब आप कहोगे कि ये क्या होता है, तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो होती है उनकी मदद से, ना कि हम बस एंटीजन को, तो उस सैंपल में हार्मोन, ड्रग या फिर कोई भी जो है इंसुलिन, ओके, या फिर एससीजी जो प्रेगनेंसी डिटेक्शन में काम आता है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट बायोकेमिकल्स को हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं इन द सैंपल. ओके, यूजिंग दी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़. नाउ दिस मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो है, आपको याद होगा हमने एलाइजा में ये कंसेप्ट सुना था. देन इवन इन दी रेडियो इम्यूनो ऐसे, उन सब चीज़ों में हमने देखा था कि एंटीबॉडीज़ यूज़ की जाती है. वो भी हम उसको लेबल वगैरह करते, फिर रेडियो आइसोटोप से लेबल कर सकते, किसी एंजाइम से लेबल कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टेक्निक. ठीक है, तो ये सब जो एंटीबॉडीज़ की हम बात करते थे, वो एंटीबॉडीज़ थी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़. अब उनको अगर हमें यूज़ करना है, एलाइजा में यूज़ करना है, रेडियो इम्यूनो ऐसे में यूज़ करना है, तो पहली चीज़ तो हमें उनको लैब में बनाना पड़ेगा यूजिंग द हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी. एंड देन वी कैन यूज़ देम फॉर द डिफरेंट पर्पजेस ऑफ डिटेक्शन और द डायग्नोसिस. नाउ इनकी अगर हम बात करें, तो ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ है, दे आर बीन यूज्ड फॉर द रेडियो इम्यूनो ऐसे एंड द एलाइजा टेक्निक. ठीक है, एलाइजा आपको याद होगी. ठीक है, इन दोनों टेक्निक्स में जो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का एक
बहुत बड़ा रोल है। आपको पता है डिटेक्शन में एंटीबॉडीज़ का यूज़ किया जाता है, फिर उनको लेबलिंग किया जाता है, ठीक है। इसलिए एंटीबॉडीज़ की बहुत बड़ी जो भी डिटेक्शन होता है बेस्ड ऑन दी एंटीबॉडीज़ ओनली। नाउ ये क्यों किया जाता है, तो हम इसकी मदद से, हमने वहाँ पे भी देखा था कि इसकी मदद से हम इंसुलिन, एससीजी जो प्रेगनेंसी में काम आता है, ठीक है, देन ग्रोथ हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, इन सब चीज़ों का डिटेक्शन हम लोग कर सकते हैं। इवन द एंटीजन डिटेक्शन इन द सैंपल, इन सब चीज़ों का डिटेक्शन हम कर सकते हैं। इवन ड्रग्स का डिटेक्शन भी हम लोग सैंपल में से कर सकते हैं। ब्लड सैंपल हो, यूरिया सैंपल हो, जो भी सैंपल हो, हम उससे डिफरेंट डिफरेंट बायोकेमिकल्स का डिटेक्शन कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे, तो आपको पता है कि आपको कौन सा बायोकेमिकल देखना है, उस सैंपल में प्रेजेंट है कि नहीं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप लैब में उस सैंपल की मदद से, या फिर आपको सपोज़ कोई ड्रग डिटेक्ट करना है तो आप वो ड्रग माइस में इंजेक्ट करके उसकी बॉडी में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। और वही मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ टेस्ट के टाइम पे बस उस सैंपल पे दे देने की, इफ़ दैट सैंपल हैज़ दैट ड्रग और एनीथिंग, तो वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जिसको हमने रेडियो आइसोटोप से फॉर एग्जांपल लेबल किया है, तो वो जाके सैंपल पे बाइंड हो जाएगी, तो इजीली हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। अब रेडियो आइसोटोप का आपको पता है कि वो गैमा रेज इमिट करती है, तो इजीली हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कि उसने गैमा रेज इमिट कर ली है, मतलब उस सैंपल में जो है पर्टिकुलर एंटीजन है, तो वो ड्रग भी हो सकता है, हार्मोन भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे हम जो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की मदद से डिटेक्ट कर सकते हैं कि उस सैंपल में कौन सा बायोकेमिकल प्रेजेंट है, ठीक है, जो भी बायोकेमिकल की आपको टेस्ट करनी है। सो लाइकवाइज वी कैन डू फॉर द अदर पर्पसेस ऑल्सो। तो पहली चीज़ आपने क्या देखी कि डायग्नोस्टिक में यूज़ होता है, और पहला डायग्नोसिस है बायोकेमिकल डिटेक्शन। नाउ यहाँ पे हम लोग बस इसी का नहीं तो क्लॉटिंग फैक्टर्स या फिर इंटरल्यूकिन्स या फिर एंटीजन, इनका भी डिटेक्शन ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। नाउ बहुत सारे ऐसे डायग्नोस्टिक किट्स अवेलेबल है आजकल, जो रेडीमेड किट्स आपको मिलेंगे, जो जिसमें ऑलरेडी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होंगी, ठीक है। जैसे आप टीवी पे ऐड देखते हो, प्रेगनेंसी किट की ऐड आती है, ठीक है। तो ऐसे रेडीमेड किट्स अवेलेबल है जिससे जो है प्रेगनेंसी टेस्ट की जाती है, तो उसमें भी किसका यूज़ होता है, तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का यूज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा कैंसर का डिटेक्शन भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से किया जाता है। हार्मोनल डिसऑर्डर है या फिर हार्मोन का आपको चेक करना है बैलेंस, तो वी कैन आल्सो यूज़ द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। इवन एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़, उसका भी डिटेक्शन हम एलाइजा रेडियो इम्यूनोएसे की टेक्निक की मदद से डिटेक्ट कर सकते हैं, और उसमें सबसे बड़ा रोल है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का। नाउ जो दूसरी चीज़, जो दूसरा डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन है, इट इज़ द यूज्ड इन दी डायग्नोस्टिक इमेजिंग। आपने ये कंसेप्ट सुना भी होगा, जैसे फोटोग्राफी होती है ना, वैसे ही ये कंसेप्ट होता है कि आपकी बॉडी में कुछ तो छोड़ा जाता है, लाइक फोटोग्राफिक कैमरा छोड़ा जाता है, ठीक है, छोटा कैमरा होता है। अब वो कौन सा होता है मैं आपको बताऊंगी। तो वो अंदर जाके आपको बस एक 3D इमेज दे देता है कि आपके बॉडी में ये डिसीज़ है या फिर नहीं है, उसका एक प्रूफ हमें मिल जाता है। इवन इसकी मदद से, जो फोटोग्राफी की जाती है उसकी मदद से हमें पता चलता है कि हमारी ब्लड कैसे फ्लो होता है, हमारी बॉडी में फंक्शनिंग प्रॉपर हो रही है कि नहीं। तो ये एक स्कैनिंग किया जाता है यूजिंग दी इमेजिंग टेक्निक, ओके। तो अब इसका मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से क्या संबंध है, तो जनरली ना कैंसर ट्रीटमेंट डिटेक्शन में ये चीज़ की जाती है। तो आपकी जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती है ना, ठीक है, उनको किया जाता है लेबल, ठीक है, उनको किया जाता है लेबल विथ दी रेडियो आइसोटोप, ठीक है। अब ये एंटीबॉडीज जो है, जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, ये होंगी एंटी ट्यूमर एंटीबॉडी, मतलब जो भी आपके ट्यूमर सेल्स है बॉडी के, ठीक है। अब आपको डिटेक्ट करना है उसके बॉडी में फॉर एग्जांपल लंग कैंसर है कि नहीं, तो आपने क्या किया है कि एंटीबॉडीज़ ऐसी बनाई है जो पर्टिकुलरली किसको जाके बाइंड करेगी, टू दी लंग कैंसर सेल, ठीक है, मैलिग्नेंट सेल, जो लंग का कैंसरस सेल है उसी को जाके, नॉर्मल लंग सेल को नहीं, उसी को जाके बाइंड करेगी। अब होगा क्या, ये जब जाके अगर उस पर्सन के XYZ पर्सन के बॉडी में कैंसर फॉर्म हुआ है, तो ठीक है, तो ये एंटीबॉडी जाके वहीं पे जाके बाइंड होगी, ठीक है, और कहीं नहीं होगी, और पर्टिकुलरली कैंसर सेल पे होंगी, ठीक है, नॉर्मल लंग सेल पे नहीं होगी। तो होगा क्या, उसके बाइंड हो जाने के बाद ये रेडियो एक्टिविटी दिखा सकता है, क्योंकि
हमारे बॉडी में ये जो एंटीबॉडी उस पे हमने रेडियो आइसोटोप लगाया है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हमने रेडियो आइसोटोप लगाया तो वो कुछ तो इमिट करने वाला है, तो वो होता है गामा रेस। तो उसके बाद हमने क्या किया, एक चीज़ दैट इज़ नोन एज द सिंगल फोटोन इमिशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ठीक है। एक कैमरा होता है, स्पेक्ट उसको कहा जाता है, ठीक है। ये कैमरा अंदर जाएगा, उसने क्या कैप्चर करना है, वो पर्टिकुलरली क्या कैप्चर करेगा, गामा रेस। अब एंटीबॉडी अगर जहाँ पे सेल है वहीं पे रुकेंगे। हमने क्या किया, लंग पे जाके फोकस किया कि वहाँ पे कहीं पे है क्या वो एंटीबॉडी बाइंड। तो जब हमने फोकस किया तो वी कैन इजीली डिटेक्ट कि वहाँ पे बाइंड है, गामा रेज इमिट हो रही है, तो आपको 3D इमेज भी मिल जाएंगी ट्यूमर सेल की। तो इससे हम लोगों को पता चल सकता है कि उस पर्सन के बॉडी में जो है कैंसर है कि नहीं, ठीक है। तो लाइकवाइज इट इज़ बीन यूज्ड, इसका एक अच्छा एग्जांपल है नेफोटिमोमैप, ठीक है। एक टाइप की मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो रेडियो आइसोटोप के साथ बाइंड की जाती है फॉर द लंग कैंसर डिटेक्शन। कौन सी, नोफेट्यूमोमैप, ओके। इट इज़ जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, बट आपको इसका एप्लीकेशन याद रखना है फॉर द डायग्नोस्टिक इमेजिंग, ठीक है। ये इसी के साथ साथ आप लोग बस कैंसर का ही नहीं, तो कोई कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ है या फिर और भी कुछ कैंसर है या फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन किसी सेल को हुआ है कि नहीं, ये भी आप लोग कैमरा, जो सीक्रेट कैमरा है हमारा डायग्नोस्टिक इमेज के थ्रू हम लोग इसका भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो लाइकवाइज इट इज़ बीन यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस पर्पसेस। नाउ इसके अलावा एक और एग्जांपल है कि एज अ सेकंड एप्लीकेशन आई वुड से थेरापेटिक रीएजेंट मतलब क्या, कि डायरेक्टली ट्रीटमेंट में आप लोग, अभी हमने पहले जो एप्लीकेशन देखा वो डायग्नोस्टिक का था, मतलब डिटेक्शन हम लोग करते थे। अब दूसरा एप्लीकेशन है थेराप्यूटिक, मतलब डिटेक्शन तो हो गया, अब ट्रीटमेंट में भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ यूज़ की जा सकती है। तो अब वो कैसे यूज़ की जा सकती है, मतलब इतनी फ़ायदे की चीज़ें, ये सिर्फ डिटेक्शन के लिए नहीं तो ट्रीटमेंट के लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो वो कैसे किया जा सकता है सॉरी। तो यहाँ पे जो पहला एप्लीकेशन है, इट इज़ इन द डिस्ट्रॉइंग द डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। तो कभी कभी क्या होता है ना, कोई डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इतना स्मार्ट होता है कि वो इजीली हमारी इम्यून सिस्टम को डिटेक्ट नहीं होता, या फिर उसका इन्फेक्शन इजीली डिटेक्ट नहीं होता। तो ऐसे वक्त में हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी की इम्यून सिस्टम वीक है सपोज, ठीक है, उसकी बॉडी में नहीं वो डिटेक्ट हो पा रहा, तो ऐसे वक्त में हम लोग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ पर्टिकुलरली जो है ऐसे सेल्स के लिए होंगी, ओके, या फिर इस पर्टिकुलरली इस प्रोटीन्स के लिए होंगी जो प्रोटीन या बैक्टीरिया बनाता है, ठीक है। तो ऐसे पैथोजन जो है जो सेल को इन्फेक्ट करते हैं उसके अगेंस्ट होंगी। तो होगा क्या, सपोज़ किसी सेल ने इन्फेक्ट किया है, ओके, किसी बैक्टीरियल सेल ने हमारे सेल को इन्फेक्ट किया, तो हमने क्या करना है उसके अगेंस्ट, अब हमें जिसका इन्फेक्शन डिटेक्ट करना है उसी के अगेंस्ट एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनानी है, ठीक है। अब वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी फॉर एग्जांपल कोलेरा के अगेंस्ट है, तो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो हम बॉडी में जो है इंजेक्ट करेंगे, होगा क्या, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जाएगी ऐसे सेल के पास जहाँ पे वो इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। अब इस XYZ सेल को हुआ है इन्फेक्शन, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी उसके पास जाएंगी, तो हमारे इम्यून सिस्टम को क्या होगा, इस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, आपको पता है जहाँ पे भी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स दिखेगा इम्यून सिस्टम को वो एक्टिवेट हो जाती है, फिर वो कॉम्प्लीमेंट पाथवे एक्टिवेट करेगी, वो फैगोसाइटोसिस एक्टिवेट करेगी और इस इन्फेक्शन को पूरी तरह से इलिमिनेट करेंगी, ठीक है। तो इस वजह से जो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इज़ बीन यूज्ड फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कैसे, तो बस उसका काम क्या है, बाइंड कर देना, सिग्नलिंग देना है हमारे इम्यून सिस्टम को कि आ जाओ इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ में भी हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हमारे इम्यून सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नाउ इसका एग्जांपल है, एक नाम आप याद रख सकते हो, पैलीविजुमैप या फिर रेगाविरुमैप, ओके, डिपेंडिंग ऑन द इन्फेक्शन। नाउ द सेकंड इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के भी ट्रीटमेंट, जैसे बैक्टीरियल सेल के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है वैसे सेम कैंसर के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो वैसे ही जैसे हमने वहाँ पे भी किया, कैंसर सेल का क्या होता है ना, कैंसर तब होता है
जब हमारी बॉडी उन ट्यूमर सेल्स को, जनरली हमारी बॉडी में नॉर्मल भी बहुत ट्यूमर सेल्स फॉर्म होता है, ऐसा नहीं है कि कैंसर हुआ तभी ट्यूमर सेल्स फॉर्म होंगे। हम हर रोज़ नए वी कैन से एक नए केमिकल को एक्सपोज होते हैं, नई चीज़ों को एक्सपोज होते हैं, तो हमारी बॉडी में ट्यूमर सेल्स फॉर्म होना नेचुरल प्रोसेस है, इतने नहीं होते। तो हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम जो है उन ट्यूमर सेल्स को टाइम टू टाइम एलिमिनेट करती है, ठीक है। अब होता क्या है कि कभी कभी वो बहुत डिटेक्ट नहीं हो पाता या फिर बहुत हिडन रहता है, तो होता क्या है कि वो स्प्रेड हो जाता है। तो ऐसे वक्त में अगर नेचुरली उस कैंसर सेल को एलिमिनेट करना है तो किया क्या जाता है, मतलब कैंसर थोड़ा सा है तो अब हम लोग ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो किया क्या जाता है, सपोज हमारे बॉडी में कैंसर सेल है, ठीक है, कैंसर सेल एबनॉर्मल होता है, ठीक है, वो राउंड नहीं होता। तो आपके बॉडी में कैंसर सेल है, ठीक है। अब हुआ क्या कि अब कैंसर सेल है तो हमें उसको एलिमिनेट करना है। तो किया क्या जाता है, इस कैंसर सेल के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाई जाती है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, ठीक है। वो पर्सन में इंजेक्ट की जाती है, ये एंटीबॉडी जाके इस कैंसर सेल को बाइंड होगी, ठीक है। अब ये पर्टिकुलरली उसी सेल के अगेंस्ट है, नॉर्मल सेल को तो बाइंड ही नहीं होगी, बस जाएगी और कैंसर सेल को बाइंड होगी। अब ये दोनों बाइंड हुए, मतलब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ, वो भी लार्ज, तो ईजीली हमारी बॉडी इसको डिटेक्ट करेगी, साइटोसिस करके या फिर कोई भी कॉम्प्लीमेंट पाथवे या फिर ग्रैनुलाइजेशन करके जो है इसका न्यूट्रलाइजेशन कर लेगी, इसका एलिमिनेशन कर लेगी। ऐसे ट्यूमर्स को या फिर कैंसर का भी ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग जो है इस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नाउ इसका एग्जांपल है फिर रेटुजिमैब या फिर बिवेसिजुमैब, ओके, थोड़े डिफ़िकल्ट नाम है, याद रखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो ये कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द इम्यूनो सप्रेशन इन द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जनरली जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है तो उस रिसीवर को, ठीक है, जो ऑर्गन लेता है उसमें इम्यूनो सप्रेशन किया जाता है ताकि उसकी इम्यून सिस्टम उस ऑर्गन को एक्सेप्ट कर ले, उसको परेशान ना करे उस ऑर्गन को, और एडप्ट होने दे, उसकी नज़र में ना आए ऑर्गन, इसलिए उसको थोड़ा सा सप्रेस किया जाता है इम्यून सिस्टम को यूजिंग दी इम्यूनो सप्रेशन ड्रग्स। नाउ उनकी ज़रूरत ना पड़े इतने सारे ड्रग्स वगैरह की, तो इसलिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का भी यूज़ किया जाता है फॉर दैट पर्पज़। तो एग्जांपल यहाँ पे है, ऐसी एंटीबॉडीज़ बनाओ जो जाके हमारे टी लिम्फोसाइट्स को बाइंड होगी, जिससे वो लोग न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और वो हमारे बॉडी में एक्टिव नहीं रहेंगे, एंड दैट्स वाई दैट ऑर्गन गेट्स ईजीली अडेप्टेड। अब ऑब्वियस सी बात है, जब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हम लोग टी लिम्फोसाइट्स के लिए बनाएंगे तो वो जाके उनको बाइंड करेगी, तो वो बी सेल को एक्टिवेट नहीं कर पाएगी, कोई हमारी इम्यून सिस्टम एक्टिव नहीं हो पाएगी क्योंकि एंटीबॉडीज़ नहीं प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। तो इसकी वजह से ईजीली वो ऑर्गन सलामत रहेगा। तो इम्यूनो सप्रेशन ऐसे इनडायरेक्टली भी किया जा सकता है। ऐसी मोनोक्लोनल एंटी बनाओ जो सीधे जाके टी सेल को बाइंड करेगी, जिससे होगा क्या कि टी सेल एक्टिव नहीं रहेगी तो वो बी सेल को भी एक्टिवेट नहीं कर पाएगी और कोई मैकेनिज्म एक्टिवेट नहीं होगा। तो ये भी एक वे है फॉर द इम्यूनो सप्रेशन, गुड वे, ओके। ट्रीटमेंट ऑफ एड्स, जैसे हमने कैंसर के लिए मैंने आपको बताया, एड्स का आपको वायरस का नाम पता होगा ना, HIV HIV वायरस। तो ये HIV वायरस का भी सेम चीज़, डिटेक्ट नहीं हुआ, वो आपकी बॉडी के अंदर है, ठीक है, सेल्स को इन्फेक्ट कर चुका है, तो हमने क्या करना है, उस सेल के लिए एंटीबॉडीज़ बनानी है। वो एंटीबॉडी जाके उस इन्फेक्टेड सेल को बाइंड करेगी, सेम वे जैसे बैक्टीरिया में हमने देखा, और इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देंगी। उससे क्या होगा, ईजीली वो एड्स का जो सेल है या फिर HIV इन्फेक्टेड जो सेल है वो एलिमिनेट हो जाएगा और इन्फेक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। बट ये माइनर केसेस में हम कर सकते, मेजर में नहीं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन इज़ यूज़ इन द इम्यूनोटॉक्सिन्स। तो इम्यूनोटॉक्सिन्स जो है एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें टॉक्सिन का यूज़ किया जाता है। टॉक्सिन मतलब क्या, इन अ पॉजिटिव वे। फॉर एग्जांपल किसी बैक्टीरिया का आप लोग टॉक्सिन ले सकते हो फॉर एलिमिनेटिंग द लार्जर इन्फेक्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल टी सेल का कैंसर हुआ है, ठीक है, टी सेल्स का कैंसर है बॉडी में, तो एंटीबॉडीज़ लो, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी टी सेल के अगेंस्ट, उसको बाइंड करो विद अ पर्टिकुलर टॉक्सिन, बॉडी में डाल दो, वो एंटीबॉडी जाके बाइंड होगी टी सेल को जो कैंसरस है, और उनके साथ साथ जो हमने टॉक्सिन बाइंड किया था वो टॉक्सिन भी उसको जाके
बाइंड होगा, एक्टिवेट हो जाएगा और उस टी सेल को एलिमिनेट कर लेगा, ठीक है। ऐसे इम्यूनोटॉक्सिन्स को यूज़ किया जाता है। और इम्यूनोटॉक्सिन्स का मतलब ही होता है कि टॉक्सिन विद द इम्यूनो मीन्स टॉक्सिन्स विद द इम्यूनोग्लोबुलिन्स मीन्स विद द एंटीबॉडीज, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज द एंटीबॉडी डायरेक्टेड एंजाइम प्रोडक्ट थेरेपी। अब यहाँ पे क्या किया जाता है, कभी कभी क्या होता है ना, आपको पता है, आप लोग कोई दवाई लेते हो, ठीक है, बट वो दवाई उस टारगेट सेल के साथ, सपोज आपने दवाई अपने हाथ दर्द के लिए ली, हैंड एकिंग के लिए ली है, लेकिन सपोज या फिर हेडेक के लिए ली है, लेकिन आपने दवाई ली, वो पेट में जाएंगी, साथ साथ आपके पूरे बॉडी में ब्लड के थ्रू फैल जाएंगी और ब्लड तक जाने में बहुत वक्त भी लगेगा, प्लस साथ साथ उसके साइड इफ़ेक्ट आपके पूरे बॉडी पे हो सकते हैं। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ऐसी चीज़ को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। तो कैसे, तो ये ड्रग जो होता है, सिंपली ड्रग सपोज हेडेक के लिए है या फिर कैंसर के लिए है, तो उस ड्रग को बाइंड करना है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के लिए। और सपोज आपको हेडेक है तो उस पर ब्रेन के ही सेल्स के लिए जो बनी है ऐसी एंटीबॉडीज़ हम बाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये एंटीबॉडी विद द ड्रग जाएंगे सीधे वहाँ पे जहाँ पे उसको जाना है, और वहाँ पे जाके ड्रग एक्टिवेट हो जाएगा और वो रिलीज़ हो जाएगा। प्रो ड्रग विल बी कन्वर्टेड इनटू एक्टिव ड्रग यूजिंग सम एंजाइम जो हमारे बॉडी में है, ठीक है। बॉडी के जो एंजाइम्स है उसी की मदद से ड्रग एक्टिवेट हो जाएगा जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के साथ बाइंड है, और वो सीधे टारगेट पे जाएगा, ठीक है। मतलब सपोज ब्रेन सेल्स, ठीक है, वहाँ पे जाएगा। अब आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, डोंट टेक इट एज ए सीरियस, ओके। तो ये वहाँ पे गया तो वहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। ये प्रो ड्रग जो है बॉडी के एंजाइम की मदद से ड्रग में, एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट होगा और इजीली टारगेटेड ड्रग डिलीवरी होंगी, ठीक है। इसके अलावा जो है बहुत सारे कैंसरस ट्रीटमेंट में भी टारगेट ड्रग डिलीवरी की जा सकती है, ठीक है, ताकि साइड इफ़ेक्ट्स अवॉइड हो। नाउ ड्रग डिलीवरी थ्रू दी लाइपोसोम्स कपल्ड विद द स्पेसिफिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, मतलब क्या होता है, अब मैंने आपको एंटीबॉडीज़ का बताया, ठीक है, लेकिन अभी गलती से ऐसा हो सकता है कि एंटीबॉडीज़ टारगेट पे जाने से पहले ही ब्लड में कहीं डिटेक्ट हो जाए, ठीक है, तो ड्रग वहाँ पे नहीं पहुँच पाएगा क्योंकि वो वहीं पे एलिमिनेट हो जाएगा हमारे इम्यून सिस्टम की वजह से। तो होगा क्या, इससे भी हमारे एलिमिनेशन जो है ड्रग डिलीवर नहीं हो पाएगा। तो इसका एक बेस्ट वे है कि जो ड्रग है, ठीक है, उसको आप लोग लाइपोसोम, अब लाइपोसोम जो होते हैं ना, सैक लाइक वेसिकल्स होते हैं, ठीक है, जो लिपिड से बने हुए होते हैं, जो हमारी बॉडी के जो लिपिड्स है उससे मिलते जुलते हैं, ठीक है। हमने उसमें ड्रग डाल दिया, ठीक है, और उस पर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ भी बाइंड कर ली जो स्पेसिफिक है हमारे टारगेट सेल के लिए, ठीक है, जैसे ब्रेन सेल। अब होगा क्या, हमारी बॉडी इसको एज ए अपना सेल ले लेंगी, ठीक है, उसको ज़्यादा परेशान नहीं करेगी, प्लस बॉडी में जो भी हार्ट से एंजाइम्स वगैरह है उसका भी इजीली सामना कर पाएंगे ये लोग, और सीधे जाएंगे ब्रेन में, वहाँ पे जाके ये लाइपोसोम जो है इससे फ्यूज़ हो जाएगा यूजिंग दिस मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, ठीक है। इसका एफसी रीजन यहाँ पे बाइंड होगा ऑन द ब्रेन सेल, और ये ड्रग फिर यूजिंग द एंजाइम्स ये रिलीज होगा फ्रॉम द लाइपोसोम्स एंड ईजिली टारगेट सेल पे जाके अपना काम कर लेगा, ठीक है। ये ट्यूमर सेल भी हो सकता है, तो ऐसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर में इसका यूज़ किया जाता है फॉर दी बाय फ्यूजिंग दी anti-HER एंटीबॉडी विद द लाइपोसोम दैट इज़ डोक्सोरुबिसिन, ठीक है। तो ऐसे भी हम लोग ड्रग डिलीवरी कर सकते हैं। एज वेल एज रेडियो इम्यूनोथेरेपी इज ऑल्सो बीन यूज्ड। तो जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि हमने जैसे वहाँ पे कैमरा के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ कपल्ड विद द रेडियो आइसोटोप्स, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ऐसी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हमें बनानी है जो रेडियो आइसोटोप के साथ बाइंड है, ठीक है, वो जाके इजीली टारगेट सेल पे बाइंड होगी, ठीक है। अब होगा क्या, हमें क्या करना है कि थोड़ी सी ज़्यादा अमाउंट में जो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बनानी है, वो जाके जब टारगेट सेल पे बाइंड होगी यूजिंग द गामा रेज, वो एंटीबॉडीज़ ईजीली जो रेडियो एक्टिव है ईजीली उस कैंसर सेल को किल कर सकती है, ठीक है। तो ये भी एक वे ऑफ ट्रीटमेंट है कि बस डिटेक्शन नहीं करना, तो डायरेक्टली उसको एज ए ट्रीटमेंट ही हम लोग यूज़ कर सकते हैं। देन प्रोटीन प्योरीफिकेशन में भी यूज़ किया जाता है यूजिंग दी अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी एंड दी इम्यूनोप्रेसिपिटेशन, ठीक है। आपको पता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जब एंटीजन से बाइंड होती है, ठीक है,
या फिर कोई भी एंटीबॉडी जो है एंटीजन से बाइंड होती है तो वो प्रेसिपिटेट हो जाती है अगर सोल्यूबल एंटीजन है। अगर प्रोटीन छोटे छोटे है, ठीक है, और हमने उसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, अब आपके पास सैंपल, ठीक है, अब आपको उसमें से बस प्रोटीन निकालना है जो आपको चाहिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बनाएंगे, वो उस सैंपल में डालेंगे, तो ईजिली इस एंटीबॉडीज़ की मदद से वो प्रोटीन जो है प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा और हम वो लोग उस प्रोटीन को जो है आइसोलेट कर सकते हैं और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से सेपरेट करके इजीली आपको प्योर प्रोटीन मिल जाएगा। एज वेल एज आपके पास इम्प्योर प्रोटीन है या फिर मिक्स ऑफ प्रोटीन है और आपको बस इसमें से एक ही प्रोटीन चाहिए, तो अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी भी आप कर सकते हो। एक चेम्बर है, ठीक है, एज एन जनरल एग्जांपल देती हूँ, उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने इस एंटीबॉडीज़ को लगाया जो स्पेसिफिक है। अब वो कैसे, सपोज ये चेम्बर है, ठीक है, ओके, विद बेटर कलर, तो ये चेम्बर है, ठीक है, और यहाँ पे हमने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को लगाया जो हमारी स्पेसिफिक प्रोटीन के अगेंस्ट है। आपके पास बहुत सारे प्रोटीन का मिक्सचर है, ठीक है, अलग अलग प्रोटीन का, लेकिन जब हमने इसमें से वो प्रोटीन पास किया तो बस हमारा जो डिज़ायर्ड प्रोटीन वो ही यहाँ पे बाइंड होगा, बाकी सब नीचे चला जाएगा वेस्ट में, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको वॉश करेंगे विद द बफर और हमारा डिज़ायर्ड प्रोटीन कलेक्ट हो जाएगा। तो ये भी एक वे है फॉर द प्रोटीन प्यूरिफिकेशन। तो ऐसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो है बहुत सारे पर्पसेस में यूज़ की जाती है, लाइक फॉर दी प्रेगनेंसी डिटेक्शन, हार्मोन डिटेक्शन, एंटीजन डिटेक्शन, एज वेल एज कैंसर ट्रीटमेंट, इवन एनी काइंड ऑफ दी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ट्रीटमेंट, एज वेल एज एड्स ट्रीटमेंट, एंड इवन दी HIV ट्रीटमेंट। ऑल्सो प्रोटीन प्योरीफिकेशन में इसका बहुत बड़ा यूज़ है, एंड ऑल्सो हम लोग ड्रग डिलीवरी में भी इसका यूज़ कर सकते हैं यूजिंग द लाइपोसोम्स ऑल्सो, ठीक है। सो दिस आर सम इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ठीक है, इम्पॉर्टेंटली थेराप्यूटिक एंड दी डायग्नोस्टिक एंड प्रोटीन प्यूरिफिकेशन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, दिस आर सम मेन एप्लीकेशंस। इसके अलावा भी बहुत एप्लीकेशन है, यू कैन डू द रिसर्च ऑन इट, ठीक है। Thank you. And after this point, the whole chapter is finished. That is the last chapter, hybridoma technology and monoclonal antibodies. If you have any query or doubt related to any point, please feel free to ask me. Okay, thank you.